اس وقت ہم کوہاٹ کے علاقے ترپارکر میں موجود ہیں۔ جو مناظر ہم نے دیکھے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ بتایا ہم کسی تالاب کے پیچھے، کسی کنویں کے پیچھے، آپ خود یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پانی کے پیچھے ترس رہے ہیں۔ اور یہاں تالابوں سے جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، وہاں سے یہاں کے بچے، خواتین اور جوان پانی پیتے ہیں۔ کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لوگ تنگ ہو گئے بجلی سے، مگر کچھ بجلی بھی نہیں ہوتی اور ہے بھی نہیں۔ اعلان بھی کیا تھا شہریار افریدی نے، اچھا نام پتہ ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ کہ یار آپ کا اسکول بھی ہو جائے گا، ڈسپینسری بھی ہو جائے گی، لیکن ماشاءاللہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ وعدہ ہوا ہے، کام نہیں ہوا ابھی تک، برکے کا کوئی کام نہیں ہوا۔ باقی مسائل تو ٹھیک، آپ لوگوں کے علاقے میں گیس پریشر کیسے ہے؟ جی گیس تو ہمارے ہے ہی نہیں، تو پریشر کا کیا مطلب؟ شہریار صاحب تو مدرسے تک میرے پاس آئے تھے، میں موجود تھا، اور انہوں نے یہ 2-4 وعدے بالکل بڑے طریقے سے کر دیے تھے، اور میں بھی خوش تھا، عوام بھی خوش تھی، لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے، واللہ عالم۔ عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے چھوڑے ہوئے لیڈر ہیں ان سے ہم مایوس، ساری نہیں، اگر نہیں تو پیچھے عوام سے پوچھ لے کہ ان لیڈروں سے ہم مایوس ہو چکے۔ التماس ہے میجر شاداد سے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، آپ کے ساتھ موجودہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، لیکن آپ کا اس طرح خاموش ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کو جانتے تک نہیں۔ 2 بلب 1 پنکھا، اور اس کے بھی ہمارے 3000 4000 5000 سے بل آتے ہیں۔ یہ آتا ہے فرسٹ کلاس 500-600 روپے لوگوں سے لیتے ہیں، اور بجلی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن خاکسار۔ پروگرام ستاس و غگ میں آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں کوہاٹ کے علاقے شاپور میں۔ ناظرین، جب یہ پروگرام ستاس و غگ ہم سٹارٹ میں پلان کر رہے تھے تو میرا ارادہ تھا کہ اس علاقے یعنی شاپور میں ہم صرف ایک پروگرام ریکارڈ کریں گے۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ مشہور علاقہ ہے، یہاں پر تانڈا ڈیم واقع ہے، یہاں پر تاریخی مقامات واقع ہیں، تو یہاں پر اتنے مسائل نہیں ہوں گے۔ یہ پروگرام میرا 4تھا پروگرام ہے جو میں شاپور میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس علاقے جا رہے ہیں وہ 21ویں صدی میں بھی لوگ بنیادی ضروریات سے دور ہیں۔ وہاں کے مکین، وہاں کے لوگ پانی تالابوں سے پی رہے ہیں، جہاں پر جانور پانی پیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ان کی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم کوہاٹ کے علاقے ترپارکر میں موجود ہیں۔ اس علاقے کا نام بورکہ ہے، اور اگر اس کو میں ترپارکر کے نام سے یاد کروں تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، ہم جب یہاں پہنچے تو عصر نماز کا وقت تھا، اور ہم جب مسجد جا رہے تھے تو درمیان میں جو مناظر ہم نے دیکھے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ مسجد گئے، وہاں پہ ہم نے وضو پانی ہے اس کے لیے بھی انتظار کرنا پڑا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ عامہ دین موجود ہے، ان سے بات کریں گے اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہے یا ان کی مسائل ہیں وہ ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ اچھا، اپنا مختصر سا تعارف کریں۔ میرا نام کینار ہے،
किनार खान मेरा नाम है, एक्स चेयरमैन मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे मसाइल हैं, और ये ज़ाती मसाइल किसी का भी नहीं है, ये इज्तिमाई मसाइल है। और ये दाएं बाएं जितने लोग बैठे हुए हैं ये सामने, इनको देख लें कि हमें पानी की इतनी सख्त तकलीफ है कि जैसे कलमे के पीछे गैर मुस्लिम तरस रहे हैं, हम इस तरह पानी के पीछे तरस रहे हैं। क्यों कि जो ट्यूबवेल हमारा सलमान तालाब पे खोदा गया है, उससे जो पैप लगा है, आधा पैप हमारा लोहे का है और 900 पैप जो निकाला गया है मंदूरी से, वो आके बुरक्के की आवाम के लिए वो पैप लगा है यहाँ पे, कि उस पैप की वजह से हमें इतनी तकलीफ है कि पूरे महीने में हम 2 दिन या 1 दिन उस ट्यूबवेल का पानी हम देख लेते हैं। बकाया हम किसी तालाब के पीछे, किसी कुएं के पीछे, आप खुद यहाँ आके देख रहे हैं कि ये लोग पानी के पीछे तरस रहे। लेकिन चाहे हमारा MNA है, MP है, सूबाई हुकूमत है, लेकिन कोई भी हमारा बुरके का फिक्र किसी को भी नहीं है। पैप जो है हमारा 900 पैप लोहे का है, 900 पैप प्लास्टिक का लगा हुआ है। आप खुद इस रास्ते पे आए हैं कि मिट्टी के ढेर जगह जगह पे लगे हुए थे। ये इस वजह से लगे हैं, क्यों कि वो पैप एक दिन ठीक, 10 दिन मतलब है कि वो पैप नकारा पैप लगाया है उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे इन पाइप को लगाए कितना अरसा हुआ? ये पैप जब नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, तकरीबन 10 साल पहले। 10 साल तो नहीं बनते, करीब करीब 10 साल बनते हैं। अच्छा, हजार रुपया चंदा करके पानी तक हम पहुँचे हैं, लेकिन पैसा हमारे पास ख़त्म था। वो आज भी खोदा हुआ है, हमने बंद किया हुआ है। अच्छा, यानी यहाँ पे पानी जो नापैद है उसकी खास वजह यह है कि पानी बहुत ज़्यादा गहराई में है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गहराई में है। कम से कम यहाँ पे जो भी ट्यूबवेल खोदा जाए ना सर जी, तो उसको मेरे अंदाजे पे 5 से लेके 6 गज तक, क्योंकि फिर मैंने बाड़े से गाड़ी मंगवाई, ये ड्रिल बोर वाले, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे इस पे जो उसका हिसाब कंपनी का सिस्टम है, उसने कहा कि यहाँ पे इस पे कम से कम 16 लाख रुपया खर्च आएगा और पानी तक मैं पहुँचाऊँगा। बकाया निज़ाम आप इस पे खुद करें। यानी यहाँ पे ज़्यादातर आबादी गरीब लोगों की है और हुकूमती फ़ंड के अलावा यहाँ पे पानी का पैदा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पहले आप लोगों ने देख लिया कि पानी का कितना प्रॉब्लम है हमें, और वो प्रॉब्लम भी हल हो सकता है जिस चीज़ की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये कुछ 6-7 साल पहले गवर्नमेंट ने हमारे गांव के मगरिब की तरफ पहाड़ के साथ एक बारिश डैम का मंसूबा रिकमेंड किया था, और वो अब भी कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि बाअसर शख्सियात ने उसको इल्तवा में डाला हुआ है। तो ये डैम अगर बन जाए तो हमारा पीने का पानी भी हल हो सकता है मसला, और नहर भी जारी हो सकती है। और नहर से सिर्फ बुरक्को को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे से ईस्ट साइड पे गांव बमा और गांव कमरडन का बहुत इलाका बग़ैर पानी के है। तो ये 3 गांव का मसला हल हो सकता है अगर उस डैम को बनाया जाए। और वो इल्तवा में डालने की मुझे जहाँ तक वजह मालूम हो रही है, तो वो चंद घर हैं तो उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यहाँ आपके तो बिल्कुल सर कि राइट साइड पे तांडा डैम वाक़ई है, तो वहाँ से अभी तक सर्विस आप लोगों को नहीं मुहैया हुई? जी, तांडा डैम की उस वक्त बनी नहीं, और अब जो है वो कोई सुनता नहीं है। और वहाँ मैंने तो ये सुना है कि कुछ आदमी गए तो उन्होंने बोला जी अब ये हाइट है, यहाँ तक पानी नहीं आ सकता, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं आता। वो भी हो सकता है उसको सर्वे किया जाए, हो सकता है आ सकता है। हमसे ये सवाल होता है कि जो आपका पैप लग गया है और ये पैप रोज़ फटता है, 1 हफ्ते पानी आता है, 1 महीने पानी नहीं आता, उस वक्त आप सो रहे थे कि ये पैप लग गया और आपने इस पर कोई एहतजाज, कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमने आवाज़ भी उठाई। मैं ये कहता हूँ कि वो महकमे हैं, मौजूद हैं, जो इस चीज़ को पास करते हैं, गवर्नमेंट से लाखों के हिसाब से तनख्वाहें लेते हैं, उन्होंने क्यों अपना काम नहीं किया? आया ये जिम्मेदारी ये गरीब आवाम की है? यानी आपका मतलब ये है कि इंस्पेक्शन की अपनी कमेटीज़ हैं, अपने इदारे हैं, ये काम हमारा नहीं है, वो खुद इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। जो फंड्स आता है, फंड्स कहाँ से आते हैं ये भी सबको पता है, गरीब आवाम से निकाले जाते हैं और गरीब आवाम पर लगने के लिए आते हैं। काश कि वो 50-50% भी आवाम पर लगते,
लेकिन नहीं लगते। वो कैसे पास होते हैं? तो तमाम मंसूबे कैसे पास हो जाते हैं? और फिर हमारी तरह गरीब लोग, ये जो लोग हैं, ये बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए सुबह उठते हैं। लॉकडाउन से ऐसी मसाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रोटी का फ़िक्र फिर भी नहीं होता। हर वालिद को, हर घर के सरबराह को पता है कि मैंने इतना कमाया हुआ है कि रोटी मिलेगी मुझे, लेकिन शाम को आते हैं तो उससे ये गम होता है कि पानी होगा या नहीं होगा। काम बाला जो हमारे MNA MPs हैं, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड है वो यहाँ मिलता नहीं है, जो मिलता है वो तरीके से लगता नहीं है। पानी का मसला अपनी जगह, इसके अलावा सेहत का कोई, इतने बड़ी आबादी के लिए कोई सेहत का प्रोग्राम नहीं है। हमसे तकरीबन 3-5 किलोमीटर नीचे एक BHQ है, लेकिन उसमें भी यहाँ के लोग, मेरा ज़ाती मुतालबा ये है कि एक कम से कम एक जच्चा बच्चा सहूलत यहाँ होनी चाहिए। 24 घंटों में 1 घंटा सारा दिन को 1 घंटा बिजली नहीं होती, और रात को भी 24 घंटों में मतलब 2 घंटे बिजली होती तो 4 घंटे नहीं होती। फिर यहाँ से हम SDO को, सपोर्टेंट को फ़ोन करते रहते हैं, मगर वहाँ अभी आती है, वो घंटे बाद आती है, मगर वो आती है तो वो भी नाकाबिल कबूल होती है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि बिल, इतने बिल आ रहे हैं कि हर घर के अंदर बिल आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ मीटर्स लगे हैं? मीटर लगे हुए हैं, घर पर घर मीटर लगा हुआ है। बिजली इतनी ज़्यादा बिल आती है कि हर घर की बिल खुद ही चेक कर सकते हैं। 5,000 10,000 लोग तंग हो गए बिजली से, मगर कुछ बिजली भी नहीं होती और है भी नहीं है, और बिल वही इस तरह भेजते हैं। हमारी कोई बात सुनते भी नहीं है। जाते हैं दफ्तरों में तो यही कहते हैं कि भाई बस दरख्वास्त दे दो, आपका काम हो जाएगा, मगर कोई सुनता भी नहीं। और रात दिन ये लोग बिजली से बहुत तंग है, यानी मतलब है कि है नहीं है। जी, तालीमी लिहाज इधर बिल्कुल नाकिस है। हमारा स्कूल है, उसके कमरे गिरे हुए हैं, टीचर 6 अगर चाहिए हैं तो उधर 3 होते हैं। वैसे मिडल स्कूल है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10 टीचर हों तो 3 होते हैं, टीचर की तादाद भी कम है। और वैसे हमारे 300 बच्चा करीबन बाज़ार में पढ़ रहे हैं। हम इस गरीबी में बच्चों को बाज़ार में पढ़ा रहे हैं, किसी से कर्ज़ लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तालीम की लिहाज सही हो जाए। लेकिन अभी तक कोई इस तरह का हमारा ना MNA साहब ने कोई मसला सुना है। इधर आया था मदरसे में, उसने ये ऐलान भी किया था, शहरियार अफरीदी ने। अच्छा, नाम पता है आपको? माशाल्लाह। जी। अच्छा, कि यार आपका स्कूल भी हो जाएगा, डिस्पेंसरी भी हो जाएगी, लेकिन माशाल्लाह बस यही कह रहे हैं कि वादा हुआ है, काम नहीं हुआ। अभी तक बरके का कोई काम नहीं हुआ। 10 साल, क्योंकि PTI की हुकूमत 10 साल रह चुकी है इधर, और 10 साल में उसको कोई काम नहीं किया। बाकी मसाइल तो ठीक। आप लोगों के इलाके में गैस प्रेशर कैसे है? जी, गैस तो हमारे है ही नहीं, तो प्रेशर का क्या मतलब? अच्छा, मतलब अभी तक गैस ही नहीं है इस इलाके में? भाई, गैस की असेंबली लगी हुई है, ये सामने बिल्कुल मदरसे के साथ। मैं तो समझ रहा था शहरियार अफरीदी के इतने इफ्तिताह हो चुके हैं कोहाट में, तो मैं समझ रहा था कि यहाँ भी गैस की सहूलत होगी कम से कम। और जी बस, शहरियार साहब तो मदरसे तक मेरे पास आए थे, मैं मौजूद था, और उन्होंने ये 2-4 वादे बिल्कुल बड़े तरीके से कर दिए थे, और मैं भी खुश था, आवाम भी खुश थी, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है, वल्लाह आलम। सही। अच्छा नाजरीन, जब जैसे ही मैंने गैस प्रेशर की बात की तो हमारे भाई सारे हंसने लगे। यकीनन ये एक लतीफ़ा इन लोगों के लिए। और मेरे अकब पर आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके बैक साइड पे तांडा डैम वाक़ है। यानी तांडा डैम बहुत करीब है इस इलाके के, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी का इतना संजीदा मसला है। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला मसला हमारा पानी का है। ये पानी का हमारे लिए मंसूबा लगा, ये मंसूबा नहीं है, ये कोई अजूबा है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, हमें अभी तक पानी अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। अभी मैं कसम से कह सकता हूँ कि पूरे महीने में 4 दिन पानी नहीं चला है। तो ये मंसूबा नहीं था, ये अजूबा है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, ना पाइप लाइन है, ना इस जदीद दौर में हमें शमसी का कोई तरीका है। तो पानी गया। पीछे रहा हमारा स्कूल। हमारे मलक साहब ने स्कूल के बारे में बात की है। हमारे मिडिल स्कूल की ये हालत है कि इस वक्त तक उसमें टाइम टेबल अवेलेबल नहीं है कि इस वक्त किस चीज़ का पीरियड है। तो हमारा स्कूल ना होने की वजह से हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में, लालगढ़ स्कूल में भटक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में तादाद पूरी नहीं हो रही है जिस पे हमें हाई स्कूल मिल सके। हमारा स्कूल मेडल है। जो हमारे 6ठी 7वीं के लड़के हैं, इधर तालीम कमज़ोर होने की वजह से लालगढ़ी चले गए हैं, पब्लिक स्कूल चले गए हैं। तो हमारी जो मिडल की तादाद है वो कम है। वो तादाद हम हाई के लिए पूरी नहीं कर सकते, क्यों? तालीम कमज़ोर है। तो तालीम का ये हाल रहा। हमारे स्कूल में पानी का भी कोई पानी पीने का डिगी भी नहीं है, ना टैंकी है। आप खुद देख सकते। अभी अगर मैं आपको कब्रिस्तान ले चलूँ पीछे, तो उसमें पाकिस्तान के फ्लैग ही फ्लैग होंगे। वो क्यों? सारे पाकिस्तान फौज आर्मी में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं।
लेकिन इधर शहीद हो चुके हैं। शहीद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हमारा कब्रिस्तान भरा पड़ा है। पीछे रही गैस की बात, जो हमारे भाई ने गैस की बात की है, ये गैस लाइन हंगू दवाबा को पहुंच गया है। हमारी खेतों से, हमारे घरों से निकल कर हंगू दवाबा को पहुंच गया है। हमें इधर पीछे फ्यूल छोड़ा है, लेकिन वो धोखा देने के लिए फ्यूल छोड़ा है। आपको देंगे, लेकिन कब देंगे? जब क़यामत हो जाए। तो गैस भी हमें को देने को तैयार नहीं है। हंगू दवाबा कुरमे तक शायद पहुंच जाए, लेकिन हमें नहीं होगा। क्यों? हमारा कोई अपना MNA नहीं है। हम जैसे चूज़ करते हैं, या वो खटक होता है या वो अफरीदी होता है। तो आज दिन तक किसी ने हमें कोई इस चीज़ पर मुतमईन नहीं किया है। मैं कहूँगा आखिर में कि इमरान खान को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसने जो हमारे इधर लीडर छोड़े हुए हैं पिछले 7 सालों से, वो देख ले कि उन्होंने हमारे लिए किया है। अगर नहीं हो तो इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उसके छोड़े हुए लीडर हैं ऐसे हम मायूस सारी नहीं, अगर नहीं तो पीछे आवाम से पूछ ले कि इन लीडरों से हम मायूस हो चुके हैं। तो खुदारा हमारी इस गरीब आवाम का देखा जाए कि बहुत परेशान हाल है, इसके लिए कुछ हो जाए, मेहरबानी। शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से MPA के बारे में पूछा। यहाँ के MP यानी PK 81 की MPA मेजर रिटायर्ड शादाद हैं, लेकिन यहाँ उनको लोग नहीं जानते। तो मेरी इल्तिमास है मेजर शादाद से कि ठीक है, आप लोग अपोजिशन में हैं, आपके साथ मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, लेकिन आपका इस तरह खामोश होना भी ठीक नहीं। यहाँ के लोग आपको जानते तक नहीं। यहाँ पर हाज़िरी लगाएं और इनके मसाइल सुनें और हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। एक नए प्रोग्राम के लिए हसन खाकसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।